Good evening, students. Now we continue our chapter 2, unit and measurement, and our next topic is error. Okay, what is error? It is very simple word error, और error का नाम आते ही हमारा दिमाग कहाँ जाता है? मिस्टेक. हमारा दिमाग कहाँ जाता है? मिस्टेक. Error means mistake. This is the error. Am I correct? Mistake is error. For example, एक example हम लेते हैं. The actual value, I give you a road and the actual length of this road is 2 meter. I give you a road and the actual length of this road is 2 meter. But when you measure the length of this road, then you got that the length of this road is not 2 meter, it is 1.90 meter. So this 1.90 meter is your measured value and 2 meter is actual value. That means the difference which arises in between the actual value and the measured value is called the error. Measured value और actual value के बीच का जो difference होता है, this difference is called the error. Again we take another example. I give you a bundle of notes and I say you that count it. Okay, the actual counting of these notes are 100, but when you count it, then you see that the number of notes are not 100, it is 98. So 100 is the actual counting of this bundle, but 98 is the measured value, which measured by you. So here again the difference in between the actual value and the measured value is called the error. तो अगर हम error की बात करते हैं तो simply error क्या है? Error is difference between actual value and measured value is called error. Actual value और measured value का जो difference आता है, this difference is called error. Got it? Okay. अब यहां पर हम बात ये करते हैं कि error की types कितनी होती है? How many types of error? अगर हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, देन अगर हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं, देयर आर जस्ट 3 टाइप्स ऑफ एरर. फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक एरर. सेकेंड वन, random error. And third one, gross error. So basically there are the 3 types of error. This is the systematic error, second one is random error, and third one is gross error. Okay, now we studied these errors one by one briefly. So first we take the systematic error. Okay, सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर यानी जो एरर सिस्टम से हो रही है, जो एरर सिस्टम से हो रही है, उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे. अब आप कहेंगे कि सर सिस्टम से कौन सी एरर होती है या सिस्टम से एरर कैसे होगी? तो फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ बैग ऑफ कॉइन एंड से यू दैट काउंट इट. I know that 1000 coins are inside the bag, but when you count it, then you got it 998. Again you count it, then you got it 999. Again you count it, you got it 1000. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचते हुए
आपकी जो एरर थी बढ़ती हुई थी, बढ़ती हुई से मतलब 98, 99 पॉजिटिव वे में जा रहे थे। और अगर यही काउंटिंग पहले 98, फिर 97, फिर 96, तो फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता। तो सिस्टमैटिक का मतलब है कि व्हेन यू मेजर any value of a physical quantity and if the value of physical quantity moving in particular one direction and this direction is an increasing order or in decreasing order, then it is called the systematic error। क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर वे में जा रहे हैं, या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे या फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे, देन इट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। तो अगर हम सिस्टमैटिक एरर को डिफाइन करते हैं तो सिस्टमैटिक एरर के लिए हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर्स विच ओकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैटर्न और सिस्टम। जो सर्टेन पैटर्न और सिस्टम से ओकर होती है उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो सर्टेन पैटर्न और सिस्टम का मतलब मैंने जो अभी आपको बताया, सर्टेन पैटर्न का मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सर्टेन पैटर्न या सिस्टम में जो एरर ओकर होगी देन दिस एरर इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। ओके, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर, अच्छा एक चीज और, दिस एरर, ये एरर क्यों हो रही है, द कोज ऑफ दिस एरर इज नोन बाय अस। इस एरर के होने का रीजन हमें पता होता है, और बहुत सिंपल सी बात है कि जिस एरर के होने का रीजन हमें पता है उस एरर को हम इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय अस बिकॉज द रीजन ऑफ दिस एरर नोन बाय अस। ये हमें पता होता है, इसलिए हम इसे इजीली मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर को क्लासिफाइड हम कर देते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो मेनली 4 टाइप्स में सिस्टमैटिक एरर क्लासिफाइड होती है। सबसे पहला टाइप आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब यह होता है कि जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उस मेजरमेंट के लिए यूज्ड डिवाइस में कुछ ना कुछ करेक्शन हो, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से जो वैल्यू हमें मिलती है दिस वैल्यू इज एरर्ड वैल्यू। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जिस डिवाइस को हम यूज में ले रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज में ले रहे हैं, उसकी वजह से जो एरर अराइज हुई है दिस एरर इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक अ थर्मोमीटर। हमने एक थर्मोमीटर लिया, अब उस थर्मोमीटर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। क्या डिफेक्ट था कि उसमें ऑलरेडी जो मर्करी था वो 10 डिग्री सेल्सियस पे था। कितने डिग्री सेल्सियस पे था? 10 डिग्री सेल्सियस। अब व्हेन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, अ नॉर्मल मैन, तो व्हेन यू मेजर द टेम्परेचर एंड द नॉर्मल टेम्परेचर 97.3 एंड 97.4 just like is, but due to the error of thermometer the temperature shows by the thermometer is 107. Why? Because 10 डिग्री तो पहले से ही वो ज्यादा चल रहा है। तो ये जो एरर है दिस एरर इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से क्रिएट हुई है, इंस्ट्रूमेंट के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से क्रिएट हुई है, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इस इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम मिनिमाइज कैसे करें? पता था मेरे को कि इसमें एरर आएगी, तो या तो वी एक्सचेंज द इंस्ट्रूमेंट, या फिर वी टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वी टेक अ गुड कंपनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टमैटिक एरर। नाउ द सेकंड इज द पर्सनल एरर। जब हम पर्सनल एरर की बात करते हैं तो पर्सनल मतलब हमारी वजह से। अब पर्सनल एरर क्या होती है? पर्सनल एरर का मतलब यह होता है कि हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर अराइज होती है दिस एरर इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। अब हमारी लापरवाही या हमारी केयरलेसनेस का मीन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं या हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं,
अब जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते करते हम टेलीविजन देख रहे हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या किसी और दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैलकुलेशन में एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारी केयरलेसनेस, हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, उस वजह से वहां पर एरर अराइज हो जाएगी एंड दिस एरर इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। तो उस एरर को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज द पर्सनल एरर। तो यानी जो एरर हमारी केयरलेसनेस की वजह से अराइज होगी, दिस एरर इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। ओके, थर्ड वन आती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हैं, और अगर हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल वापस लेता हूं, हमने किसी एक ऐसे पर्सन को थर्मोमीटर पकड़ा दिया जिसने उसकी लाइफ में थर्मोमीटर नहीं देखा, इट इज नॉट ही इज नॉट सीन द थर्मोमीटर इन हिज होल लाइफ। अब जब जिसने थर्मोमीटर उसकी होल लाइफ में ही सी नहीं किया तो ही कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली। तो ये क्या है, ये है उसका लैक ऑफ इम्परफेक्शन। अब उस थर्मोमीटर को वो क्या करेगा, कैसे यूज करेगा, हम कहते हैं टेम्परेचर नोट करो, उसे यही पता नहीं है कि उसे कहाँ आर्म पिट पे लगाना है, उसे माउथ में लगाना है, वो कान में घुसा दे, वो नाक में घुसा दे, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो उस इम्परफेक्शन की वजह से, उस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो वहां पर एरर प्रोड्यूस होगी, दिस एरर इज कॉल्ड द एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए जिस डिवाइस को पहले हम काम में ले रहे हैं, उस डिवाइस के बारे में हमें पहले पूरी नॉलेज ले लेनी चाहिए। जैसे घरों के अंदर जब हम अप्लायंसेस लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, रेफ्रिजरेटर लाते हैं, कुकिंग माइक्रोवेव लाते हैं, तो उसके साथ में जो गाइड आती है, गाइड बुक आती है, पहले हमें उस गाइड बुक को रीड करना चाहिए, उसका एवरी इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद में हमें उस इंस्ट्रूमेंट को यूज में लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से हमारे अंदर परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन आने से हम उस डिवाइस को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, उस डिवाइस के अंदर किसी तरह की कोई एरर हमारी वजह से नहीं आएगी। तो ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज द एरर अराइजेस इज कॉल्ड द एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ओके, इसके बाद में जो एरर हमारी नेक्स्ट एरर आती है, वो आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से जो एरर होती है, दिस एरर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एरर, या एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से बहुत समझा रहा हूं आप लोगों को, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टेक अ प्रैक्टिकल, व्हेन वी डन अ प्रैक्टिकल इन अ लैब, this practical is based on electricity completely. अब we have no arrange any generator or any inverter in our lab. So when we starting the practical and when we reach the mid of the practical, then light becomes gone. Then उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ, result is not founded, result is not gained by us. क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल करते करते लाइटें चली गई। इसी तरह से अगर कहीं पर, जैसे हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, पुराने टाइम पे जो फोटोग्राफ्स होते थे, उनके नेगेटिव्स को डार्क रूम में बनाया जाता था, नेगेटिव से फोटो डार्क रूम में बनाया जाता था। अब सपोज कोई प्रैक्टिकल है जिसे डार्क रूम में करना है, और डार्क रूम में करते करते कुछ ऐसा हो गया कि वहां पर लाइट इंसर्ट हो गई, तो उस कंडीशन में प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। कोई ऐसी प्रैक्टिकल हमें करना है जिसके अंदर विंड की रिक्वायरमेंट नहीं है और तेज विंड आ गई, प्रेशर कम रखना है, प्रेशर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम रखना है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो those errors which are produced due to the external factors, external sources, just like as the temperature, pressure, wind velocity, electricity, is called the error due to external sources.
इसको हम एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर में हम ये कहते हैं 4 टाइप्स। सिस्टमैटिक एरर को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो क्लासिफाइड करने में हम सिस्टमैटिक एरर्स को 4 टाइप्स एरर में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वन इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं हम, सेकंड वन पर्सनल एरर, थर्ड वन एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन एंड फोर्थ वन एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस। So this one is the systematic error. Okay. Now the second one is random error. Okay. What is the random error? Random का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं randomly selected. तो randomly selected का मतलब क्या है? 100 छोटे छोटे चिट बनाए, पेपर के ऊपर हमने नाम लिखे, 100 नाम लिखे पेपर पे, उनको छोटा छोटा फोल्ड किया, एक बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स को बहुत तेजी से शेक किया और उसमें से एक निकाल लिया। तो इसको बोलते हैं रैंडमली सिलेक्शन। ये क्या कहलाता है? रैंडमली सिलेक्शन। तो रैंडम एरर जब हम पढ़ते हैं तो सिस्टमैटिक एरर में तो ये था कि भाई अगर एरर पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो इंक्रीजिंग ही होती जाएगी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो डिक्रीजिंग ही होती जाएगी। बट इन केस ऑफ रैंडम एरर इट मे बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बोथ। यानी रैंडम एरर के केस में जो एरर अराइज होगी वो इंक्रीज भी हो सकती है और वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो ऐसी एरर को हम कौन सी एरर कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द रैंडम एरर या फिर चांस एरर। इसको हम चांस एरर भी कहते हैं। यानी जिस एरर के अंदर हमें यह पता नहीं होता कि एरर प्लस होगी या माइनस होगी, वो एरर आपकी रैंडम एरर कहलाती है या चांस एरर कहलाती है। ओके, अब इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस एरर को मिनिमाइज करने का सीधा सा तरीका है कि आपका जो मेजरमेंट है, आप मेजरमेंट के नंबर्स बढ़ाते हो। जितना ज्यादा आप मेजरमेंट्स को रिपीट करोगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, देन योर एरर बिकम्स मिनिमाइज एंड एट लास्ट यू गॉट अ राइट रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डन अ मैथमेटिक क्वेश्चन and you completed it and reaches at answer. When you see your answer in your answer key, then you see that your answer is not matched by the answer key. Then what you done? What you done? Rub the whole question? Whole question? कर देते हैं क्या? रब कर देते हैं whole question को या पेज फाड़ देते हैं? क्या करते हैं? We check the question. हम उस क्वेश्चन को पूरा चेक करते हैं। जब हम उस क्वेश्चन को चेक करते हैं तो जब हम उसको कॉन्सेंट्रेटली चेक करते हैं, देन वी फाइंड सम माइनर मिस्टेक। ठीक है, हमें एक माइनर मिस्टेक मिल गई, हमने फाउंड कर ली। हमने उस माइनर मिस्टेक को सही किया और सही करके वापस हम आंसर तक आए। हमने देखा कि अब जो हमें आंसर मिला है वो आंसर की के आंसर से मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन अब उसके नियरेस्ट आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड। Again we check, then we found another mistake. I correct it and again found the answer. This answer is again not matching, but again very nearest to the right answer. Again I check. तो इस तरह से जब मैं अगेन उस क्वेश्चन को चेक करूंगा तो उस क्वेश्चन के अंदर जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको मैं फाइंड आउट करता चला जाऊंगा और उनको मैं करेक्ट करता चला जाऊंगा। देन एट लास्ट आई गोट अ राइट आंसर। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का सीधा सा मेथड है कि यू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उतनी एरर मिनिमाइज होती हुई चली जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब रैंडम एरर की हम बात करते हैं तो रैंडम एरर के अंदर यहां जो एक वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे हमने बहुत सारे मेजरमेंट लिए, हमने किसी रोड को मेजर किया तो उसके 8-10 मेजरमेंट हमारे पास आ गए। अब वो 8-10 मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो अब उन मेजरमेंट से मुझे अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उन सारे मेजरमेंट्स का अर्थमेटिक मीन लेना पड़ेगा।
यानी मुझे एक पर्टिकुलर मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी उन सारे मेजरमेंट्स की, और उन सारे मेजरमेंट्स की जब मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा तो उस अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को ही मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उन 10 ऑब्जर्वेशंस में से किसी को करेक्ट नहीं माना, मैंने उन 10 ऑब्जर्वेशंस को लिया, उनका मीन लिया और मीन लेकर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच गया। देन दिस वैल्यू इज द रियल वैल्यू, दिस वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। तो ये है यहां पर कि जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, जितने ज्यादा रिपीटेशन आप करेंगे, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, जितने ज्यादा मेजरमेंट्स आप करेंगे, उतनी जल्दी आप रिजल्ट्स तक पहुंचेंगे। और जितने ज्यादा आप यहां मेजरमेंट्स करेंगे, उन मेजरमेंट्स से करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उनका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उनका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो मेरी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू इज A1, सेकंड मेजर्ड वैल्यू इज A2, थर्ड मेजर्ड वैल्यू इज A3 एंड nth मेजर्ड वैल्यू इज AN। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, आप आंसर नहीं दे सकते। किसी ने बोला A1, मैंने पूछा कैसे भाई, कैसे आया A1? फिर से पूछा A2, तेरे A2 कैसे आया, तेरे A3 कैसे आया? तो वी नो गिव अ राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, रियल वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सबका एवरेज लेना पड़ेगा। यानी मेरे को अगर 10 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हैं और मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से एग्री नहीं हूं, तो मुझे फिर उन 10 स्टूडेंट्स को करेक्ट मानना पड़ेगा और उन सबकी वैल्यूज को लेकर उनका मीन लेना पड़ेगा। तो वो अर्थमेटिक मीन मेरी एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। तो यहां पर अगर मेरे पास ये इतने सारे मेजरमेंट हैं तो मैं क्या कर दूंगा, इनका अर्थमेटिक मीन ले लूंगा। तो मीन कैसे लेते हैं, मीन लेते हैं द सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो n क्वांटिटीज है, a n तक जा रहा है, n क्वांटिटीज हैं तो डिवाइड बाय n। और a मीन को हम कैसे लिख सकते हैं, a मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बार। तो a बार का मतलब भी वही होता है जो a मीन का होता है। तो अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब इस तरह से हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपने n टाइम्स ऑब्जर्वेशन किए तो इसका मतलब आपकी एरर 1/n टाइम कम हो गई। जितनी बार आप मेजरमेंट करते जाएंगे, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो एरर भी उतने ही टाइम कम होती चली जाएगी। 1/1, 1/2, 1/3, n टाइम किया तो 1/n टाइम आपकी एरर कम हो जाएगी। तो जितना मेजरमेंट आप करेंगे एरर की पॉसिबिलिटीज उतनी कम होती हुई चली जाएगी। तो दिस इज योर रैंडम एरर, इट इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ योर थर्ड एरर, थर्ड एरर इज ग्रॉस एरर। अब अगर थर्ड एरर की हम बात करते हैं यहां पर ग्रॉस एरर की, तो ग्रॉस एरर होती क्या है? अगर हम ग्रॉस एरर पे बात करें तो ग्रॉस एरर को जब हम डिफाइन करते हैं तो ग्रॉस एरर क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमने बात की सिस्टमेटिक एरर की। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव फीडिंग होगी या नेगेटिव फीडिंग होगी, दिस इज द सिस्टमेटिक। रैंडम की जब हमने बात की तो रैंडम में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे वो साथ साथ चलता रहेगा। तो ये आपकी रैंडम एरर हो गई। लेकिन अब जब हम ग्रॉस एरर पे आते हैं तो ग्रॉस एरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ग्रॉस एरर का कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि यहां जब हम ग्रॉस एरर की बात करेंगे तो ग्रॉस एरर के अंदर जब हम किसी भी क्वांटिटी को लेते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का क्या मेथड है। आप उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हो तो उसको मेजर करने का क्या मेथड है, यह हमें देखना पड़ेगा।
आपके मेजर करने का मेथड से मतलब यहां पर यह है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, हम कैसे मेजर कर रहे हैं, हम कैसे उसकी रीडिंग नोट डाउन कर रहे हैं, हम कैसे उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर कैलकुलेशन, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर प्रोसेस जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आएगा, वो ग्रॉस एरर के अंदर आएगा। तो जब हम ग्रॉस एरर की बात करते हैं तो ग्रॉस एरर के अंदर इन 3 या 4 फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं ग्रॉस एरर में, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि द एरर विच ड्यू टू वन और, यहां पर हम जो ग्रॉस एरर को डिफाइन करेंगे, एक सेकेंड, दिस एरर आर ड्यू वन और मोर देन वन ऑन फॉलोइंग रीजंस। किन किन रीजंस की वजह से ये हो सकती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक तो इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपने इंस्ट्रूमेंट तो ले लिया लेकिन उसका सेटिंग ही प्रॉपर नहीं है, उसको आप सेट तो कर रहे हो, वो सेट ही प्रॉपर नहीं हो रहा। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग, आप जो उसकी रीडिंग नोट कर रहे हो, इम्प्रॉपर रीडिंग नोट कर लिया आपने, रीडिंग ही सही नोट नहीं की, आपकी रीडिंग आ रही है 12.52, आपने रीडिंग नोट कर दी 12.25, गलत। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से हुआ क्या, उस छोटी सी मिस्टेक से आगे तक की आपकी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गई। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि आपको अगर कोई भी प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहले एक तो आपको प्रॉपर सेटिंग इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए, जो आपकी रीडिंग है वो जो आप लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, वो सही होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अगर आपने प्रिकॉशन नहीं रखी तो ग्रॉस एरर होगी ही होगी। आपसे कहा कि भाई प्रिकॉशन में हाथ, इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाना है, इंस्ट्रूमेंट को एकदम सेटेड रखना है, इंस्ट्रूमेंट के तारों को नहीं छेड़ना है, लेकिन हमने उन प्रिकॉशंस को ध्यान नहीं रखा, तो फिर वहां पर क्या होगी, एरर अराइज होगी। तो ग्रॉस एरर के 3 मेन रीजन हैं। फर्स्ट, नॉट प्रॉपर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सेकंड, नॉट प्रॉपर रिकॉर्डेड द रीडिंग, एंड द थर्ड is the not take the proper precautions. These are the gross error. तो 3 errors हो गई ये हमारी, जहां पर हमने बात की थी। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर थी, दूसरी आपकी रैंडम एरर थी, और तीसरी आपकी ग्रॉस एरर थी। तो दिस इज द 3 errors which we studied here. ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर एब्सोल्यूट एरर। अब थोड़ा सा समझने वाली चीजें आ गई है और बहुत सिंपल है, मैथ्स ही है एक तरह से देखा जाए तो हम लेते हैं यहां पर एब्सोल्यूट एरर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा ए से। एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डेल्टा ए से। किससे, डेल्टा ए से। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट एरर होती क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर होती है द डिफरेंस इन बिटवीन एक्चुअल वैल्यू and measured value is called absolute error. It is represented by डेल्टा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए से। यानी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब यहां पर हमारे पास में 2 चीजें हो गई, कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी एक्चुअल वैल्यू और एक हो गई आपकी मेजर्ड वैल्यू। आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाल के क्या गेन करना है, डेल्टा ए। अब मैंने आपसे कहा कि आपने कोई प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके आपने ऑब्जर्वेशन निकाले। ऑब्जर्वेशन कैसे निकाले, मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रोड, तो आपने क्या किया, रोड की लेंथ एक स्टूडेंट ने मेजर की 1.9, एक ने मेजर की 1.85, एक ने मेजर की 1.8, एक ने मेजर की 1.92। ये मैं आपको एक एजम्पशन बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल्स की रीडिंग अलग अलग आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ गए। हो सकता है 2-3 के सेम ऑब्जर्वेशन भी आ जाए। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मेजरमेंट डिफरेंट्स आ रहे हैं, तो आप उसमें से एक्चुअल किसे मानोगे, तो फिर वही मेथड आएगा
कि एक्चुअल मानने के लिए मुझे उन सब मेजरमेंट्स का अर्थमेटिक मीन लेना पड़ेगा, और अर्थमेटिक मीन लेने पर जो वैल्यू मेरे पास आएगी, दिस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू। उसे मैं क्या मानूंगा? एक्चुअल वैल्यू। और जो मेरे पास में ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो ऑब्जर्वेशंस मेरे कहलाएंगे मेजर्ड वैल्यू। उनको हम क्या नाम देंगे? मेजर्ड वैल्यू। तो देखिएगा यहां पर हम करते हैं स्टार्ट। यहां पे मैंने आपसे कहा कि कोई एक ऑब्जर्वेशन है, कोई मेजरमेंट है, तो मैं लिखता हूं सपोज मेजर्ड वैल्यू ऑफ any measurement becomes A1, A2, AN। ठीक है, तो इसकी जब हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे या एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? AM से। ए मीन करके निकालेंगे, तो A1, A2, AN बाय N। ये क्या आ गई मेरी? एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो नाउ व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? Absolute error is the difference in between the actual value and the measured value। तो अब यहां पर मैं निकालता हूं absolute error। तो मेरी फर्स्ट absolute error क्या होगी? बहुत ध्यान समझिएगा। फर्स्ट absolute error डेल्टा A1। तो मेरी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कौन है? AM। इसमें से कौन लेस होगी? मेजर्ड वैल्यू। लेकिन मैं फर्स्ट absolute error निकाल रहा हूं, तो मेजर्ड वैल्यू भी कौन सी आएगी? फर्स्ट। तो AM माइनस A1। इसी तरह से डेल्टा A2 AM माइनस A2। इसी तरह से डेल्टा AN AM माइनस AN। तो कहने का मतलब यह है कि आपको करना क्या है कि जैसे जैसे आप एब्सोल्यूट एरर निकालते चलेंगे, वैसे वैसे आप जो मेजर्ड वैल्यू होंगे, नंबर्स बढ़ाते चलेंगे। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर तो फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकंड एब्सोल्यूट एरर तो सेकंड नंबर ले लिया, थर्ड एब्सोल्यूट एरर तो थर्ड नंबर ले लिया। तो कहने का मतलब A1, A2, A3 कहां तक चले जाएंगे आप? AN तक। तो ये आपकी कौन सी एरर कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। यानी द डिफरेंस इन बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। गॉट इट? ओके, अब सेकंड वन जो आती है इसकी, अच्छा एक चीज और, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये भी अपने जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएगा ये बहुत अच्छी तरह से। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो अब यहां पर एब्सोल्यूट एरर के बाद में हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो डेल्टा AM लिख दो या फिर डेल्टा A बार लिख दो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आपने निकाली है, आप उन सब एब्सोल्यूट एरर्स का क्या ले लो? मीन ले लो। तो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन अब यहां पर जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन लेने के लिए ईच एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। यानी इन दिस एरर वी टेक mean of magnitude of each absolute error। यानी आपको मीन तो लेना है, लेकिन किसका मीन लेना है? आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर से मतलब क्या है? देखो मैग्नीट्यूड का साइन कैसा होता है, पहले तो ये समझ लें। दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। इस सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है? इस सिंबल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इस सिंबल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी इसके अंदर चली जाएगी तो इट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मैं ऐसे नहीं कह सकता आपसे कि -5 kg शुगर लेके आओ, कैसे लाओ? तो अमाउंट कैन नेवर बी नेगेटिव या मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जब इस सिंबल के अंदर कोई भी क्वांटिटी चली जाती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है।
तो यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर में हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम मीन लेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर भी आपने इससे पहले निकाली थी, उनका जब मीन लेंगे तो मीन किसका लोगे, उन सब वैल्यूज के मैग्नीट्यूड का। तो दैट इज डेल्टा ए एम और डेल्टा ए बार इक्वल्स टू डेल्टा ए वन मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए टू मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए एन मैग्नीट्यूड अपॉन एन। तो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। क्या लेना है हमें, एब्सोल्यूट एरर्स का मैग्नीट्यूड लेना है। और मैग्नीट्यूड हम क्यों लेते हैं, ताकि जो क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, इसलिए हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन हम लेते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो रिलेटिव एरर क्या होती है, तो रिलेटिव एरर होती है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एब्सोल्यूट एरर का रेशियो। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एब्सोल्यूट एरर का रेशियो। तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इनका रेशियो होती है। तो यहां पर जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो डेल्टा ए एम और ट्रू एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ए एम। तो दिस इज द रिलेटिव एरर, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। ओके, तो रिलेटिव एरर किस किस का रेशियो हो गया आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू एब्सोल्यूट एरर का। अब लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव एरर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देना ही परसेंटेज एरर है। तो यानी रिलेटिव एरर को, ये परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इनटू 100%। तो ये आपकी परसेंटेज एरर कहलाती है। दैट इज डेल्टा ए एम बाय ए एम इनटू 100%। दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। तो ये आपकी 4 टाइप्स की एरर हो गई, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसके अलावा आपकी रिलेटिव एरर एंड एट लास्ट द परसेंटेज एरर। तो अब इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूं, बाकी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स है, मतलब मैथ्स है, मैथ्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोग करके देखिएगा एक बार, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है आपको, म्यू, ठीक है। और इस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिएगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू अलग अलग म्यू ऑफ ग्लास वर फाउंड टू बी, कितनी कितनी वैल्यूज दे रखी है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की, 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 और 1.46 ये आपको गिवन है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दे रखी है। तो सबसे पहली चीज यहां पर हमें ये देखनी है कि जब ये वैल्यूज हमें गिवन है तो इन वैल्यूज यानी ये आपके अलग अलग मेजरमेंट्स हो गए, A1, A2, A3, A4, A5। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे निकालना क्या है इसके अंदर, मुझे फाइंड आउट करनी है परसेंटेज एरर। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए मुझे तीनों स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। मुझे एब्सोल्यूट भी निकालना पड़ेगा, मुझे मीन एब्सोल्यूट भी निकालना पड़ेगा और मुझे रिलेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर सबसे पहले मेरे को ये वैल्यूज गिवन है, तो यहां पर मुझे एक्चुअल वैल्यू बतानी है। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले AM निकालते हैं। तो
तो ए एम क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5 डिवाइडेड बाय 5। गॉट इट। अब A1, A2, A3 इनकी वैल्यूज रख दो, 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 प्लस 1.46 अपॉन कितने नंबर्स, 5 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं। 6 4 10 10 10 8 18 20 0 2 4 2 6 5 11 5 16 20 25 2 तो 7। सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन दिस इज 1.50, ये आपका म्यू एम आ गया, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो म्यू की फॉर्म में ले लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम किसकी फॉर्म में ले सकते हैं, म्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। तो जब हम म्यू की फॉर्म में इसे ले लेंगे तो उस कंडीशन में यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फोन है तो क्लास में बात करते हैं। तो अब यहां पे जब हम बात करते हैं म्यू एम की, तो म्यू एम क्या है, यहां पर म्यू एम है, यहां जब म्यू एम निकालेंगे तो म्यू एम निकल गया आपका 7.50 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1.50, ये आपकी रियल वैल्यू आ गई। अब इस रियल वैल्यू से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो जब हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर में देखिएगा सबसे पहले डेल्टा म्यू 1, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूं मैं, तो डेल्टा म्यू 1 क्या होगा, म्यू एम माइनस म्यू 1। म्यू एम कितना है मेरा 1.50 माइनस म्यू 1 कितना है मेरा 1.52। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया माइनस 0.02। अब आते हैं डेल्टा म्यू 2 पे। डेल्टा म्यू 2 क्या हो जाएगा, म्यू एम माइनस म्यू 2। म्यू एम 1.50 माइनस म्यू 2 कितना है 1.48, तो ये हो गया प्लस 0.02। फिर आते हैं डेल्टा म्यू 3 पे, तो डेल्टा म्यू 3 इक्वल्स टू म्यू एम माइनस म्यू 3, दैट इज 1.50 माइनस 1.50, इट इज 0.00। इसके बाद हम आते हैं डेल्टा म्यू 4 पे। डेल्टा म्यू 4 इज म्यू एम माइनस म्यू 4, तो 1.50 माइनस 1.54, इट इज माइनस 0.04। इसके बाद में हम आते हैं डेल्टा म्यू 5 पे, तो डेल्टा म्यू 5 इक्वल्स टू म्यू एम माइनस म्यू 5 इक्वल्स 1.50 माइनस 1.46 इज प्लस 0.04। तो ये वैल्यूज हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक है, सिंपल है। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपने पहले रियल वैल्यूज निकाल ली और फिर रियल वैल्यूज में से 1 बाय 1 आप उन्हें लेस करते हुए जा रहे हैं। ओके, अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट। तो मीन एब्सोल्यूट में डेल्टा म्यू बार कर देते हैं। मैंने बताया था मीन एब्सोल्यूट में मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3, डेल्टा म्यू 4, डेल्टा म्यू 5 अपॉन 5। ठीक है, तो अब जब यहां पर आप इन वैल्यूज को रखोगे तो आप डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड है, तो आप इन सबको पॉजिटिव वे में लिख दो। 0.02, 0.02, 0.00, 0.04, 0.04 अपॉन 5, सबको पॉजिटिव मैनर में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 2 4 4 4 8 12, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 5, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। चाहो तो इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट को अभी कुछ देर के लिए हटा देते हैं तो 5 2 2.4, तो ये हो जाएगा आपका 0.024। ठीक है, तो ये आपकी, अब इसे राउंडिंग ऑफ में, अच्छा एक चीज और, आपको जो पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक वैल्यू है, 1 2 प्लेस तक, यहां भी पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू रखनी है, 1 2, और 2 के बाद वाली फिगर अगर 4 5 से बिलो है तो आगे वाली डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आता। ये सिग्निफिकेंट फिगर में मैं आपको पढ़ाऊंगा,
तो यहां पर 4 है जो 5 से लेस है, तो इसको मैं 0.02 लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। और ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरे पास में क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है वो पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक है, तो मेरे जो आंसर्स आएंगे वो भी पॉइंट के बाद उतने प्लेस तक ही होने चाहिए। ओके, अब इसके बाद में हम लेते हैं यहां पर मीन एब्सोल्यूट के बाद में रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में तो कुछ भी नहीं है, क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट अपॉन एक्चुअल। तो एक्चुअल कितनी थी 1.5, परसेंटेज एरर निकाल दो यहां से, 0.02 अपॉन 1.50 इंटू 100%। सॉल्व कर लो इसको, जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज एरर का आंसर हो जाएगा। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने आपको शीट्स में भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को इजी गोइंग तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आप ही को करने हैं, जितने भी इसमें 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप ही करेंगे। मेथड मैंने आपको बता दिया है और उसी मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। सिंपल मैथ्स से मैथ्स लगानी है और सॉल्व करते जाना है। 2 चीजों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जितने प्लेस तक वैल्यू दे रखी है पॉइंट के बाद, उतने ही प्लेस तक आंसर आपको लेना है। ओके बेटा, तो ये सारे क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस और भी हैं जो मैंने शीट्स में आपको पीडीएफ में आपको भेजे हैं। तो आप स्वयं करें, खुद करके देखें, सेल्फ करें, उसमें से देखें ना, आंसर ना देखें, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, आप खुद चेक करें कि हाँ हम सही कर रहे हैं और फिर उसके बाद आंसर निकालें। ओके, थैंक यू बेटा।